Good morning, everyone. So, let us discuss our homework. First, one minute. Divyansh, unmute yourself. Divyansh, Yes, Divyansh, आवाज आ रही है मेरी? yes, ma'am. हाँ, Divyansh, tell me, in which direction does the sun set in the evening? In which direction does the sun set in the evening? Ma'am, Repeat the answer. ma'am, सनसेट हम पूछ रहे हैं, सनसेट कहाँ होता है? ईस्ट में? क्या बोल रहे हो? no, ma'am. क्या होगा आंसर? West में. तो फिर ईस्ट कैसे बोला? Ma'am, चलो नेक्स्ट. हु इन्वेंटेड कंपास? हु इन्वेंटेड कंपास? ma'am क्या? हु इन्वेंटेड कंपास? तुमसे पूछिए. दिव्यांश, क्वेश्चन सुनाई दे रही है या नहीं? मेरा जवाब छिलल है. इंद्रजीत, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. इंद्रजीत, क्या होगा आंसर? हु इन्वेंटेड कंपास? जल्दी बताओ. Chance, ma'am. मैम स्पेलिंग बता सकते हैं? स्पेलिंग बताएगा? हाँ, बताओ स्पेलिंग. Yes, ma'am. CHINESE. इसको क्या बोलते हैं? चाइनीज. What is the opposite of north direction? What is the opposite of north direction? Indrajit, tell me. Jagriti, unmute yourself. Yes, ma'am. Jagriti, what is the opposite of north direction? Ma'am, south. इंद्रजीत, सुनाई दिया क्या बोली वो? Yes, ma'am. क्या बोली? South. 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 Jagriti, how many cardinal directions?
direction. Repeat the answer. How many cardinal directions? There are 4 cardinal directions. Name the cardinal directions. North, east, west, south. Very good. Jagriti, mute yourself. Okay, ma'am. Samrat. Samrat Raj Sharma. Yes, ma'am. Samrat, the invention of dash has made it easy for everyone to understand direction. Fill in the blanks है, answer बताइए. The invention of dash has made it easy for everyone to understand direction. Compass. The invention of compass. Very good. What is compass? Can you tell me what is compass? नहीं बताएगा? अनंत वैभव. Unmute yourself. Yes, ma'am. What is compass? What is compass? पुष्कर. पुशेर कुमार. पुशेर, आप बताइए. What is compass? Compass is an instrument that shows direction. Very good. Well done. एकदम correct answer. Compass is an instrument that shows direction. अच्छा, आपका नाम क्या है? पुशेर कुमार है या पुष्कर कुमार है? मैम पुष्कर कुमार. तो फिर यहाँ पे पुशेर क्यों आए हैं? अच्छा चलो पुष्कर, आप बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many intermediate directions? As we know that there are 4 cardinal directions, then how many intermediate directions? Pragati, unmute yourself. Yes, ma'am. Pragati, how many intermediate directions? Ma'am, 4. Which one? Which are? Name them. East to west, north to east, west to east. Okay. There are 4 cardinal directions and there are 4 intermediate directions. चलो, ये रिवीजन के क्वेश्चंस थे हमारे पास. हम लोग जो है आगे पहले एक बार रिवीजन कर लेते इस चैप्टर को, देन वी विल कंटिन्यू रिवाइज द चैप्टर. In our last class, we have already started the chapter number 11. आरती एंड आरतीज अदर स्कूल फ्रेंड्स के डायरेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे. लेट अस नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपास. ठीक है, तो
Swastik Shah. Unmute yourself. Swastik. Yes, ma'am. Swastik, पेज नंबर 71, लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 71 का लास्ट पैराग्राफ आप पढ़िए. Ma'am, sound is not clear. क्या बोल रहे हो? Ma'am, sound is not clear. I can't hear you. Your voice is breaking. रितु कुमारी, रितु, रितु. Yes, ma'am. रितु, आप पढ़िए. Yes, ma'am. Yes. पेज नंबर 71 का लास्ट पैराग्राफ. What, ma'am? Ma'am, but हाँ, but say, ma'am. हाँ, but how can we find the exact direction? But how can we find the exact direction with a compass of Of course? course. The रितु, मैम उसके बाद क्या मैम क्या था उसके बाद म्यूट योरसेल्फ. पहले कितनी हल्ला हो रही है आपके घर पे. यस मैम पढ़ाई करनी है तो पहले शांत जगह पे बैठिए. चलो पहले हम ही पढ़ लेते हैं, देन वी दूसरे को हम चांस देंगे पढ़ने के लिए. बट हाउ वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट डायरेक्शन. हम लोग जो है कल पढ़े थे कि कैसे हम लोग जो है डायरेक्शंस पता कर सकते हैं. जैसे हम लोग पढ़े क्लास की देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं. उसको हम लोग न्यूज NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. वी कैन राइट NEWS. These are the north, east, west and south. These are the 4 cardinal directions. North, east, west and south. Generally we use the words right, left, behind. ये सारे वर्ड्स हम लोग जनरली यूज करते हैं. जागृति जो है वो प्रगति के लेफ्ट में बैठी है, अनंत जो है वो ऋषिका के राइट में बैठा है. हम लोग इस तरीके से सारे वर्ड्स को ज्यादातर डायरेक्शंस के लिए यूज करते हैं. बट अगर हम लोग बात करें कि एग्जैक्ट डायरेक्शंस हम लोग कैसे पता करेंगे. एग्जैक्ट डायरेक्शंस, तो एग्जैक्ट डायरेक्शन जो है हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंपास और कैसे पता कर सकते हैं हम लोग. तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरीके से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, डायरेक्शंस किसी को बता रहे हैं, देन वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट डायरेक्शन. यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले ही क्वेश्चन पूछा है, आप देख रहे हो पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, बट हाउ कैन वी फाइंड द एग्जैक्ट डायरेक्शन. कैसे हम लोग एग्जैक्ट डायरेक्शन पता कर सकते हैं. Of course, with the help of compass. कैसे पता करेंगे? With the help of compass. And as we know that compass is invented by Chinese. compass को कौन invent किया है? तो Chinese लोगों ने invent किया था, Chinese ने. तो who invented compass? लिखेंगे Chinese. ठीक है? तेजस कुमार, आप लोग जो है ये 4-5 लिखने का सीक्वेंस बंद करिए चैट बॉक्स में, वरना हम एनेबल कर देंगे, आप नहीं कर पाओगे फिर.
The invention of compass has made it easy for everyone to know direction. अगर हम लोग को कंपास का इन्वेंशन होने की वजह से हम लोग को अब आराम से इजी वे में कोई भी डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं. अच्छा हमको बताओ, अगर हम कोई एक डायरेक्शंस भी जानते हैं तो क्या हम अदर डायरेक्शंस पता कर सकते हैं? हमको चैट बॉक्स में बताओ. ठीक है. अच्छा शशांक बोल रहा है यस मैम. अच्छा सम्राट बोल रहा है नो मैम. अंश बोल रहा है यस यस. ऋषिका, प्रियांशु, उत्कर्ष, अंश सबको बोल रहे हैं यस, लेकिन सम्राट बोल रहा है नो, हम लोग नहीं पता कर सकते हैं. अच्छा चलो सम्राट से बात करते हैं पहले. सम्राट रेज योर हैंड. सम्राट अनम्यूट योरसेल्फ. सम्राट अगर आपको एक डायरेक्शन पता होगी तो आप बाकी के 3 डायरेक्शन नहीं पता कर सकते हो. नहीं, हम जनरल चीजें पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं पता कर सकते तो हम बताएंगे कैसे पता किया जाएगा. सम्राट सनराइज कौन से डायरेक्शंस में होती है? कौन सा डायरेक्शन में सनराइज होता है? ईस्ट. अच्छा ईस्ट का अपोजिट? मैम ईस्ट. ईस्ट का अपोजिट? वेस्ट. तो तुमको एक डायरेक्शन हाँ तुमको एक डायरेक्शन पता था ना, ईस्ट के बारे में पता है कि सनराइज ईस्ट में होती है और सनसेट वेस्ट में होता है, तो दूसरा डायरेक्शन पता चल गया. यस मैम. अब बात करें नॉर्थ और साउथ के, तो हमारे जब ईस्ट हम मान लो कि मेरा फेस ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है और मेरा बैक साइड जो है वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर है, तो फिर यानी मेरा राइट एंड लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ होगा और साउथ होगा. अब हमको ये कंफ्यूजन दूर करना है कि कौन राइट में कौन सा डायरेक्शन होगा और लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन होगा, लेकिन डायरेक्शन तो हम पता कर सकते हैं. अगर तुमको एक भी डायरेक्शन पता होगा तो बाकी 3 डायरेक्शन तो ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे. एक डायरेक्शन मान लो नॉर्थ पता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है और साउथ के लेफ्ट एंड राइट में ईस्ट एंड वेस्ट होते हैं. क्या सम्राट गलत बोल रहे? यस मैम. पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये बताओ हमको. मैम पता कर सकते हैं. पता कर सकते हैं ना. मान लो कि आरती जो है हम लोग अभी पढ़ रहे थे, आरती वाज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन. ईस्ट का अपोजिट क्या होगा सम्राट? वेस्ट. हाँ तो ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया. अब हम लोग को बात करना है जो है ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं. मेरा ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं. अब मेरा ये यानी राइट हैंड मेरा साउथ हो जाएगा और लेफ्ट हैंड. अब बाकी डायरेक्शन पता हो गए हम लोग को? यस मैम. अगर हम लोग को एक भी डायरेक्शन पता हो जाएगी तो हम लोग आराम से बाकी तीनों डायरेक्शन पता कर सकते हैं. ठीक है चलो सम्राट. यस मैम. सो व्हाट इज कंपास? अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज कंपास. कंपास क्या है? तो कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग को डायरेक्शन बताने के लिए हेल्प होता है. कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन. ठीक है, व्हाट इज कंपास? चैट बॉक्स में आंसर करिएगा
What is compass? A compass is an instrument that shows direction. Yes, very good संस्कार, अंश राज आंसर करो। और इंद्रजीत आप भी चैट बॉक्स यूज करना सीखिए, ठीक है? चैट बॉक्स में आंसर करिए, कभी आंसर तो आप चैट बॉक्स में नहीं करते हैं। हिमांशु, तेजस, दिव्यांशु, अनंत, वेरी गुड, जागृति, लव कुमार, दिव्यांश, वैभव। चलो आगे। हाँ, लव एंड कुश, आराध्या सिंह, वेरी गुड। व्हाट इज कंपास? हम लोग सब अच्छे से जानते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन। कंपास, व्हाट इज कंपास? कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन। वेरी गुड इंद्रजीत, उत्कर्ष कुमार, दिव्यांशु। दिव्यांशु कितनी बार भेजेगा? बस कर। चलो नेक्स्ट, look at the compass. You will note that there are 4 basic points. These 4 points are at the top and the bottom, and on the right and left side of a compass they are called cardinal directions. ये जो है कंपास में 4 मेन पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। मेनली तो नॉर्थ ही होता है, लेकिन अब जो है एडवांस वर्जन में हमारे कंपास होते हैं जिसमें चारों डायरेक्शन ऑलरेडी मेंशन होता है। East, South, West, North. These are the 4 cardinal direction which has already mentioned in your compass. अगर आप कंपास कभी खरीदते हो या होगा आपके पास तो आप देखोगे उसमें चारों डायरेक्शन मेंशन होंगे, ठीक है? सम्राट, आयुष, प्रियदर्शी, वेरी गुड। अब आप लोग जो है पहले कंपेंशन लिख रहे हो सम्राट, कंपास होगा, कंपेंशन आ रहा है। इसी 4 डायरेक्शंस को हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट, these 4 cardinal directions, north, east, south and west. The sun rise in the morning in which direction? Tell me in the chat box. Sunrise in which direction? East. Very good लव कुमार, सबसे पहले लव कुमार का आंसर आया। अब देखते हैं कि सबसे पहले मेरा क्वेश्चन खत्म होता है चैट बॉक्स में सबसे पहले आंसर कौन करता है। चलो नेक्स्ट, एंड सनसेट इन वेस्ट। कौन किया सबसे पहले आंसर? देख ले हम थोड़ा। अच्छा, सबसे पहले लव एंड कुश ने आंसर किया था, ठीक है? चलो वेरी गुड। दिस रेफरेंस मेक इट इजी टू लोकेट द अदर डायरेक्शन। अगर हम लोग को एक भी डायरेक्शन पता चल जाती है तो बाकी 3 डायरेक्शन हम लोग आराम से पता कर सकते हैं। Do you know it is believed that Chinese invented magnetic compass which was used by the fortune tellers. ठीक है, चाइनीज जो है हमारा मानना है कि चाइनीज, हम लोग विश्वास करते हैं कि चाइनीज ने मैग्नेटिक कंपास का इन्वेंशन किया था। जो फॉर्चून ट्रैवलर्स यानी जो यात्रा करते थे, दूसरे कंट्रीज में यात्रा करने जाते थे, जो डायरेक्शन पता करना होता था तो वो लोग कंपास का यूज करते जैसे हम लोग तो ठीक है अभी जंगलों में चले जाए, वहां पे हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि सन राइज किधर से हो रहा है और सन सेट किधर से हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्शंस पता नहीं कर पा रहे। तब उस टाइम पे हम लोग कंपास अपने पास रखेंगे तो हम लोग आराम से कंपास का हेल्प लेकर के डायरेक्शन पता कर सकते हैं। द हैंड ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू, क्या होगा आंसर? एक मिनट,
हाँ, वेरी गुड, नॉर्थ डायरेक्शन। The hand of the compass always points to north. जो कंपास है उसका हैंड जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। अच्छा, रात में जब हम लोग छत पे जाते हैं या फिर ऐसे रैंडमली भी हम लोग खड़े रहते हैं, एक रात में सबसे ब्राइट स्टार आपको नजर आता होगा। वो ब्राइट स्टार जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन को दिखाता है। आपको पता है उसका क्या नाम है? उस ब्राइट स्टार को क्या बोला जाता है जो सबसे ब्राइटेस्ट होता है, आसमान में चमकता हुआ रहता है और एक ही जगह पे फिक्स होता है? उसको क्या बोलते हैं? मून। मून नहीं प्रशांत, प्रगति, वेरी गुड। विहान, जागृति गलत है। प्रांजल सिंह, वेरी गुड। लव कुमार, मयूर भारद्वाज गलत। लव एंड कुश, वेरी गुड। मून, मून नहीं बेटा, मून तो सैटेलाइट है हमारा, मतलब नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का। दैट इज नॉर्थ स्टार, उसको हम लोग नॉर्थ स्टार बोलते हैं। ध्रुव तारा, हिंदी में उसको ध्रुव तारा कहा जाता है। पोल स्टार भी बोलते हैं हम लोग उसको, नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है और वो हमारे हमेशा एक ही जगह पे फिक्स होता है और सबसे ब्राइटेस्ट स्टार हमारे स्काई में होता है। वो आसमान का सबसे चमकीला स्टार होता है, उसी को बोला जाता है नॉर्थ स्टार। वेरी गुड, आंसर्स आर मोस्टली करेक्ट। Now let us go back the आरती's स्कूल। अब हम लोग वापस आरती के स्कूल चलते हैं और वहां फाइंड आउट करते हैं कि आरती के जो फ्रेंड्स थे जो उनके साथ स्टेज को शेयर कर रहे थे, वो कौन से डायरेक्शंस में खड़े हैं। Now let us go back to Aarti's school and find out the direction of Aarti and her friends as they stand in the school assembly. You know that sunrise in the east, हम लोग सब जानते हैं सनराइज जो है ईस्ट डायरेक्शन में होता है। आरती इज फेसिंग टू द सन। आरती जो है वो किसकी तरफ फेस करके खड़ी है? तो सन की तरफ फेस करके खड़ी है। हैंस इज फेसिंग ईस्ट, ठीक है। तो सनराइज जहां से होती है हम लोग सबको को पता है वो ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट की तरफ वो फेस करके खड़ी है। द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। तो आरती के बिहाइंड में कौन खड़ा था? मेरे को नाम बताओ तो चैट बॉक्स में। आरती के बिहाइंड कौन खड़ा था? कौन खड़ा था आरती के बिहाइंड जब आरती जो है? हाँ, राहुल, वेरी गुड। तो आरती ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी है, तो राहुल कौन से डायरेक्शन में खड़ा होगा? आरती अगर ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी है, हाँ वेरी गुड करण। और भी नाम आए थे लेकिन वो आगे स्क्रॉल हो गए। तेजस, हिमांशु, अनुष्का बेस्ट, वेरी गुड, यस राइट आंसर। आरती जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी है और उसके पीछे राहुल खड़ा है। वो कौन से डायरेक्शन में खड़ा है? तो वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। तो ईस्ट और वेस्ट हम लोग को पता चल गया। अब नेक्स्ट पता करते हैं। Hence, west direction is the opposite of east. Rahul is standing behind the Aarti. He is the west of the Aarti. Renu is standing to the left of Aarti. रेनू जो है वो लेफ्ट में खड़ी है। मान लो सपोज दैट आई एम आरती, हम आरती हैं और हम ईस्ट की तरफ खड़े हैं। मेरे पीछे राहुल खड़ा है जो वेस्ट की ओर है और बोला जा रहा है कि रेनू जो है वो लेफ्ट में खड़ी है आरती के। तो मेरे लेफ्ट में ये वाला मेरा हैंड है, लेफ्ट हैंड, मेरे लेफ्ट में जो है वो रेनू खड़ी है। तो वो कौन से डायरेक्शन में हो जाएगी? रेनू, वेरी गुड। प्रांजल, अवंतिका, प्रगति, लव एंड कुश, कुमार, संस्कार, वेरी गुड। साउथ नहीं होगा लव कुमार, दैट इज नॉर्थ। मेरे लेफ्ट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड एंड आई एम facing towards east direction. My left hand is in the north direction. ठीक है, वेरी गुड। जब हम लोग को पता चल गया, अब कौन बची? तो अब बची नविता।
Navita is standing the south of the arc. North direction is opposite to south. क्लियर हो गई यहाँ बात? डायरेक्शंस पता कर लिए हम लोग अच्छे से? क्लियर है? किसी को डाउट है डायरेक्शंस को लेकर के? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों से क्लास में। आप ही लोग सबसे ज्यादा एकदम एक्टिव रहते हो, वीडियो ऑफ करके भी नहीं बैठता है। आराध्या सिंह को तो बोलते रह जाइए कभी वीडियो ऑन करेगी नहीं लड़की। लेकिन एक बात आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों को सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग रहते हैं। आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठोगे तो हम कल से आप लोगों को ज्वाइन नहीं करने देंगे। एक सिंपल सी बात आप लोग समझ जाइए। चलो तो यहाँ तक हम लोग आज के लिए यही रहने देते हैं। हम लोग कल फिर पढ़ेंगे, आगे का एक टॉपिक बचा हुआ रहेगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन मेरे आज का होमवर्क पहले सुनो कि होमवर्क हम क्या दे रहे हैं। होमवर्क है कि चैप्टर नंबर 11 के सारे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, 5 क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं, इसके ज्यादा बड़े आंसर्स है नहीं। तो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम लोग का हो गया है। हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कल क्लास में डिस्कस करेंगे और 2 ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, एक लड़का जो है वो रैंडमली अल्फाबेटिकली आप लोग इंटर करते हो, नाम मेरे जो पार्टिसिपेंट्स में वो अल्फाबेटिकली दिखाया जाता है। तो हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से पहले पूछेगा, फिर हम पूछेंगे। ठीक है, तो सबको प्रिपेयर करके आओगे। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 11। आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ करके आओगे और याद करके आओगे। कुछ बच्चों को ओरली पूछेंगे, कुछ बच्चों को बोलेंगे कि चैट बॉक्स में आंसर करो। तो याद नहीं करोगे तो आंसर करोगे कैसे? तो होमवर्क सुनाई दिया आप लोगों को सबको को, लर्न लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 11। एक मिनट, चलो ठीक है। कल प्रिपेयर करके आएगा सबको ही होमवर्क, आपके स्नैप होमवर्क पे भी हम डाल देंगे। अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर चैप्टर्स के बीच से भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग फिर से एक बार रिवीजन के दौरान जो है सारा चैप्टर दोबारा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग कैपेबल है कि हम लोग उसको लिख सकते हैं। लिखने का प्रैक्टिस, जब भी हम लोग कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसको लिखने की प्रैक्टिस किया करो, तब वो अच्छे से याद होगा, स्पेलिंग के साथ याद होगा। ठीक है, क्लास ओवर होने वाला है, 1 मिनट बचा हुआ है। होमवर्क आप लोग सुन लिए हो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 11 का दिए हैं। अच्छा सम्राट क्या बोल रहा है? अनम्यूट करो सम्राट, बोलो। हमको खत्म, मैम पहले का हैंड खड़ा हो गया था। अच्छा पहले ही खड़ा हो गया था, चलो कोई नहीं, तो तुरंत कर लेना चाहिए ना। चलो फिर क्लास ओवर करते हैं हम यहीं पे। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। ठीक है।